औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर फ़याज़ अहमद लोन, हाई स्कूल गुंज बुतरा से। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफ़ी का 5वां चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, पानी के बारे में। इसके जो सब टॉपिक्स है उनमें वाटर साइकिल हमें पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड ओशनिक मोमेंट्स। तो आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे वाटर साइकिल, सोर्सेज ऑफ वाटर और डिस्ट्रीब्यूशन वाटर ऑफ वाटर, ये 3 सब टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम ओशनिक मोमेंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में हमें 3 चीज़ें देखनी है। एक इवापोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये इवापोरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि विंटर्स में जो पाउंड्स, छोटे मोटे पाउंड्स होते हैं उनमें बहुत सारा वाटर होता है, बट इन समर्स दिस वाटर वैनिशेस। ये पानी जो है गायब हो जाता है। ये कहाँ जाता है? इट चेंजेस इनटू वेपर्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉन्ड, it contains water, and when the sunlight falls on it, this is sun, when the sunlight or the rays of the sun falls on it, this water, it changes into, due to the heat it changes into vapors. ये बुखारात में तब्दील हो जाता है। and these vapors, they move in the air. These vapors, they go into the atmosphere. This process is called evaporation. So evaporation is the process of changing water into water vapors due to the heat of sun. So this is evaporation. These are water vapors. When these water vapors, when they go up in atmosphere, they cool down. The cooling of these water vapors result in the formation of clouds. इनसे clouds बनते हैं. These are clouds. So when they cool down, these water vapors, they change into water droplets. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाते हैं। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और हेवियर हो जाते हैं। एंड दे फॉल, व्हेन दे बिकम टू हेवियर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, दे फॉल बैक onto the earth. This process of changing these water vapors into water droplets, this is called a condensation. So changing of water vapors into water droplets due to cooling is called condensation. And when these water droplets fall from the clouds in the form of, say, rain, either in the form of rain or in the form of snow or sleet or hail, etc. This is called precipitation. So this is the water cycle. It moves in a cyclic manner. This water, pond water or sea water or river water, it gets evaporated due to the heat of the sun, and this process is called evaporation. The process of changing these water vapors, water into water vapors, is called evaporation. When these water vapors, when they go up into the atmosphere, they get cooled down there, and due to the cooling effect, these water vapors change back into water droplets. The process is called condensation. And when these water droplets become too heavy, they fall back to the earth in the form of precipitation. Precipitation means
फॉलिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वाटर, किसी भी फॉर्म में जो क्लाउड्स से वाटर फॉल हो जाता है ज़मीन पर, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या तो रेन या हेल या स्नो या स्लीट एटसेट्रा। या दूसरी डिफिनीशन अगर हम बताएंगे, प्रेसिपिटेशन इज स्नो, रेन, स्लीट और हेल और एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशन वेयर समथिंग इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। या अगर हम इन मेट्रोलॉजिकल डेफिनेशन बताएंगे, प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर, एनी product of condensation of atmospheric water vapor that falls under gravity from the clouds. So this is the water cycle. अब हम अगर देखेंगे वाटर साइकिल होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, the process by which water continually changes form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. जैसे कि हमने देखा, ये वाटर it continuously changes forms, first it in the form of water, then in the form of water vapor, then in the form of water droplets, then back in the form of hail, rain or sleet etc, then runoff के ज़रिए फिर तालाब, पॉन्ड्स वगैरह में चला जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। सो दिस वाज द वाटर साइकिल। अब हम देखेंगे मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर जो है, हमारे पास दो तरह के जो ये वाटर होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स द वाटर which does not contain any salts, or saline water is that water which contain a large amount of dissolved salts in it। तो ये मेजर सोर्सेज जो फ्रेश वाटर के हैं, ये रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स है, ग्लेशियर्स है एटसेट्रा। दिस फ्रेश वाटर, यही जो पानी है यही हम कंज्यूम करते हैं। जो ओशनिक बॉडीज एंड सीज जो है, दे कंटेन सॉल्टी वाटर और सलाइन वाटर। अब हमारे पास जो लगभग 3/4 यानी 75% जो है अर्थ, दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड मोस्ट ऑफ द वाटर यानी 97% जो है दैट वाटर इज़ इन दीज ओशंस। तो हमारे पास 5 बड़े बड़े ओशंस है। एक फर्स्ट इज़ द पैसिफिक ओशन, ये लार्जेस्ट है, लगभग 30% जो अर्थ है दैट इज़ कवर्ड विथ दिस पैसिफिक ओशन। दूसरा है अटलांटिक ओशन। तीसरा है इंडियन ओशन। चौथा है साउदर्न ओशन। पांचवा है आर्टिक ओशन। ये 5 बड़े बड़े ओशन आपकी बुक में भी दिखाए गए हैं। दिस इज़ द पैसिफिक ओशन हियर एंड हियर दिस इज़ द पैसिफिक ओशन। This is the North Atlantic Ocean. It is between Americas and European and African continents. This is the Indian Ocean here. This is the Southern Ocean and this is the Arctic Ocean. So we were discussing about the sources of water. तो major sources of fresh water के हैं वो rivers, ponds, springs and glaciers है, और salt water के major sources है oceans, these 5 major oceans। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की तरफ आते हैं। तो ये 3/4 ऑफ, मैंने पहले ही बताया, लगभग 75% जो अर्थ है दैट इज़ कवर्ड विथ वाटर। ये वाटर जो है, इसमें से 97.3% जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन ओशंस और दैट इज़ सलाइन वाटर, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एज सच खाने और पीने के लिए, इवन इरिगेशन के लिए भी ये वाटर इस्तेमाल नहीं होता है। तो 97 लगभग नियर टू 100 97.3% जो है वो पानी ओशंस में है एंड दैट इज़ सलाइन वाटर। उसके बाद जो ये बाकी है, दिस इज़ फ्रेश वाटर ओनली, इट इज़ ओनली 3%, अबाउट 3% ऑफ द वाटर इज़ फ्रेश वाटर।
और ये फ्रेश वाटर आइस कैप्स में जो है ग्लेशियर्स 2% इसका ग्लेशियर्स में है, ग्राउंड वाटर में 0.68% जो वाटर दैट इज प्रेजेंट beneath द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रेश वाटर लेक्स जो है 0.009% लेस देन 1%। inland seas and salt lakes 0.009%। एटमॉस्फेयर जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में वो 0.0019% नेग्लिजिबल। रिवर्स जो है उनमें जो पानी है दैट अकाउंट्स फॉर 0.0001%। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो हमने आज के लेसन में क्या क्या पढ़ा? पहला वाटर साइकिल पढ़ा और द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। उसके बाद हमने वाटर साइकिल में प्रेसिपिटेशन पढ़ा। प्रेसिपिटेशन इज़ एनी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर दैट फॉलोज अंडर ग्रेविटी फ्रॉम क्लाउड्स। या दूसरी डिफिनेशन हम अगर इसको की देंगे तो प्रेसिपिटेशन इज द स्नो, रेन, स्लीट और हेल और एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशन वेयर समथिंग इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये दो पहले क्वेश्चंस है आपकी टेक्स्ट बुक के। इसके बाद हमने पढ़ा मेजर सोर्सेज। मेजर सोर्सेज में हमने फ्रेश वाटर के सोर्सेज पढ़े और जिस सलाइन वाटर ओशनिक वाटर जो है उसके सोर्सेज पढ़े। 5 बड़े जो ओशंस हैं वो हमने उनके नाम यहाँ पढ़े। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कि ओशंस में लगभग 97.3% जो पानी है दैट इज़ सलाइन present in the oceans, and rest 3% of the fresh water is either in the form of ice caps 2%, groundwater 0.68%, and freshwater lakes that is 0.009%, atmosphere and rivers that is negligible amount of water is present in atmosphere and rivers. So आज का लेसन यहाँ पे हम इख्तिताम को करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो हमारा ये ओशनिक मोमेंट्स रह गए ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।